Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर. आईएससी बोर्ड में एक बुक है स्टैंडर्ड 12th में ऑब्वियसली. इट्स नेम इज एकोज. इट कंसिस्ट्स सर्टन स्टोरीज जो कि कंसेप्चुअल नॉलेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा डेप्थफुल और डिवाइन है दोस्तों. Today I'm going to explain you or summarize you a story जिसका टाइटल है To Build a Fire by Jack London. अगर हम थोड़ी सी बैकग्राउंड चेक करें तो दोस्तों इस स्टोरी के दो एडिशंस हमें मिलते हैं. द फर्स्ट वन वॉज published written out in 1902. So mind it guys, we are talking about something beyond 115 years from now. 1902 में इसका फर्स्ट वर्जन लिखा गया एंड देन इसको फिर से रिवाइज करके लिखा गया 1908 में. 1902 के वर्जन के बारे में वी आरंट मच अवेयर, बट यस, द वर्जन दैट वाज रिटन आउट इन 1908 still lingers in minds of people because it has got a ferocity. It has got a pragmatic appeal that people go ahead and get attracted and understand it in a depth. दोस्तों ये स्टोरी यूकॉन पेनिनसुलर एरिया जो है, यूकॉन पेनिनसुला जो है वो एरिया कनाडा में जो है उस एरिया में प्लेस्ड है. उधर इसको पिक्चराइज किया गया है. This story has a few characters. Protagonist है the man. He is a solitary hiker. He actually is looking forward to go ahead on a hike through the Yukon Ridge, but that trail is somehow quite dangerous. क्योंकि यूकॉन एरिया जिस जगह पे ये स्टोरी बेस्ड है दोस्तों, वहाँ पे -75 डिग्री तक टेम्परेचर चले जाता है ड्यूरिंग द विंटर्स. एंड ये वही पार्ट ऑफ द ईयर था. एंड दिस फेलो ही वॉज अ सॉलिटरी हाइकर, मतलब ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू गो ऑन अ जर्नी दैट वॉज प्रोबेबली requiring him to visit the places alone or travel alone. Now this thought of traveling alone would have gone ahead and given shivers to various other people. लेकिन यहाँ पर हमारा जो protagonist है, that is the lead of the story, वो एक self confidence दिखाता है कि नहीं, what's wrong, I'm the apex creature. I'll come back to this thing. If you read between the lines, इसका in-depth meaning काफ़ी अच्छा है दोस्तों. Second character जो इस story में बताया जाता है, that is the wolf dog of this man, who is the companion of this man, who is traveling with this man. Wolf dog इसलिए कहा गया है, आपने कुछ breeds देखी होगी, husky, Alsatians. These kind of dogs belong to the clan of wolves. They are nearest to the cousins. इनके instincts, survival instincts काफ़ी strong रहते हैं ऐसी जगहों पर. Then the boys, these are imaginary creatures, these are imaginary characters portrayed by the man himself, जो कि एक दूसरी जगह पर probably camping कर रहे हैं, and the man wants to go ahead and meet them. And then comes the old man, who the man meets at Sulphur Creek, and he is the one who warns the protagonist कि इस साल के इस वक्त में अकेले ट्रैवल करना मतलब अपनी मौत को गले लगाना है. The whole story revolves around certain aspects of life. I'll just go ahead and summarize it for you. It happens so that the man starts the journey on the Yukon
ट्रेल। उस जर्नी में जाते जाते बहुत सारे ऐसे वाक़ये नज़र आते हैं जहाँ पर हमें ये दिखता है कि मैन अगेंस्ट द नेचर स्टैंड होने की पूरी कोशिश कर रहा है, अपनी सुपीरियॉरिटी को दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है। Guys, mind it, that's nature. And no man can fight the fury of nature. This man decided to go ahead and fight, stand against it. He has some lunch. He has a companion, the wolf dog. He has some matchsticks to build the fire and to keep himself warm. But he does not have the natural instinct जो कि उस wolf dog में है। यहाँ पर दोस्तों ये देखा गया है कि a man actually goes ahead and finds himself ready to fit in the situation, but he isn't willing to lose it all. The man walks and reaches certain part of the peninsula जहाँ पे उसको सडनली लगने लगता है कि अब ठंड बढ़ रही है। उसका चेहरा फ्रीज होने लगता है। वो आग जलाता है और उस आग को जला के वो अपने आप को वार्मथ देता है। He also goes ahead and eats his lunch. डॉग को देखता है, समझता है कि डॉग के अंदर नेचुरल इंस्टिंक्ट सर्वाइवल के हैं। चलते चलते वो एक फ्रोजन लेक के पास आता है। वहां पे he realizes that he probably would be walking on thin sheet of ice and he may drown in those cold waters, hypothermia हो जाएगा and he may freeze to his death. यहाँ एक human selfishness का भी नज़ारा दिखता है दोस्तों। He administers his dog to go ahead and walk over the lake. यहाँ एक सेल्फिशनेस इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो डॉग को ये ह्यूमन एक कंपेनियन की तरीके से नहीं देख रहा है, एक लाइफ की तरीके से नहीं देख रहा है। वो उसको एक टेस्ट सब्जेक्ट के तरीके से देखने लगता है। उस डॉग को वो उस लेक के थिन आइस पे जाने के लिए गाइड करता है। दोस्तों वो डॉग जाता है, सडनली आइस क्रैक हो जाती है। वो डॉग बहुत तेजी के साथ में he comes out of the freezing water and just starts getting the frozen ice off his paws. -75 डिग्री की बात हो रही दोस्तों, 0 डिग्री पे तो पानी फ्रीज हो जाता है। This dog actually shows the natural instincts to survive और ये मैन समझता है कि डॉग के अंदर ये इंस्टिंक्ट्स हैं। वो लंच करते करते भी डॉग को देख के यही बात समझता है कि डॉग के अंदर वो इंस्टिंक्ट्स हैं। उसे लगने लगता है that I'll be able to travel these things out. वो चलता है लेकिन इत्तेफाक से वो खुद एक ठंडे पानी के होल में गिर जाता है and his legs literally get frozen up. वो अपने mittens निकालता है, mittens are the gloves, and he goes ahead and tries to get his shoes off and warm and wipe his feet dry, लेकिन वो ये नहीं कर पाता है क्योंकि उसके हाथ फ्रीज होने लगते हैं। वो किसी तरीके से माचिस से आग जलाता है। He builds a fire. Now ये जो एक प्रोसेस बताया जा रहा है दोस्तों, that the man is building the fire against the fury of the nature. Remember, the fury of nature is -75 degrees, freezing, inevitable death. But still this man shows his stance to fight against the nature by burning the fire. पहली बार उसने फायर जला के अपने आप को ये प्रूव कर दिया था ड्यूरिंग द लंच। अपने आप को उसने प्रूव कर दिया था दैट
आई एम एक्चुअली सुपीरियर देन नेचर, ये जो फीलिंग होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बहुत हैवक भरी और गलत भी होती है, हीन भावना होती है. दिस फेलो was showing his supremacy against the power that actually has led to creation of him, the humans. Second time he tries to go ahead and dry himself up, tries to burn a fire, but in order to increase the fire, incidentally, drastically, वो क्या करता है, वो पेड़ों की टहनियों को तोड़ने लगता है. इसी उथल पुथल में वो ये भूल जाता है वो उन्हीं पेड़ों की टहनियों को तोड़ रहा है, नेचर के उसी पार्ट को जिसके थ्रू वो फायर जनरेट करने की कोशिश कर रहा था. और नेचर ने तब अपनी फ्यूरी दिखा दी. अबाउट द बो, दैट इज पेड़ों के ऊपर आइस शीट्स इकट्ठा हो रखी थी. दे फॉल ऑन द फायर एंड एक्सटिंग्विश इट. The man now tries to go ahead and burn another fire, क्योंकि अब उसे दिखने लगता है that I am probably freezing to death. कोशिश करता है वो 70 matchsticks अपने पॉकेट से निकालता है and eventually he ends up extinguishing them. वो जलाने की कोशिश करता है, फायर आग लगाने की कोशिश करता है, but he ends up extinguishing them. This shows friends कि कहीं ना कहीं फायर जला के वो अपनी सुप्रीमेसी दिखा रहा था, लेकिन एक नेचर की फ्यूरी के सामने अ puny little human being does not compare. वो एक स्टोरी भी याद करता है, हाउ अ मैन saves himself by entering a bull's skin by killing him, and उसके दिमाग में आता है that I should go ahead and kill the wolf dog and probably get my hands warm. He had a knife, of course. But friends, when he calls the dog to him, he holds him close and he tries to kill him. यहाँ दो paradoxes दिखते हैं. पहला, उसकी body that is designed by the nature, उसके mind का command, mind एक human being को represent करता है, उसके mind का command नहीं मानती. मतलब नेचर में ह्यूमंस अगर कुछ करना चाहें, हम अगर चाहते हैं कि हमारे हिसाब से दुनिया चले, नो, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. दिस सेकेंडली शोज दैट ही रिलीजेस द डॉग. यहां उसके इमोशंस, एक तो डेस्परेशन था, एक इमोशन भी दिखता है कि कहीं ना कहीं वो इमेजिन करता है एज अ ह्यूमन कि यार आई कांट डू दैट. बट इसके ऑपोजिट नेचर की फ्यूरी को इमोशनलेस बताया गया है फ्रेंड्स. नेचर डज नॉट सस्पेक्ट ह्यूमंस, इट सिंपली एक्ट्स एंड वी एज ह्यूमंस पे द प्राइस. उस वक्त ऑल ही वांटेड टू डू वाज टू रीच द टीम, द बॉयज. बॉयज का मतलब एक मेटाफोर भी है यहाँ पे दोस्तों. बॉयज जो उसे दूर इमेजिनेशन वाइज दिख रहा था कि यूकॉन ट्रेल से मैं क्रॉस करके उधर जाऊंगा, मुझे बॉयज मिलेंगे. इससे एक सिविलाइजेशन की भी हम एस्पिरेशन देख सकते हैं. सी, बिकॉज ह्यूमंस आर सोशल एनिमल. नो ह्यूमन कैन लिव अलोन. सो दिस फेलो हियर, द मैन, वांट्स टू गो अहेड एंड हैव कंपेनियनशिप ऑफ मोर ह्यूमंस. इसलिए द वर्ड द बॉयज यूज किया जा रहा है. द बॉयज से यहां पे जैक बताते हैं कि इट इज एन एस्पिरेशन ऑफ अ ह्यूमन टू रीच सर्टन सिविलाइजेशन, सर्टन एरिया वेयर मोर पीपल लाइक हिम आर देयर. एंड एक और चीज दिखती है कि ह्यूमंस हमेशा यूनिटी में लाइफ को एक्सपेक्ट करते हैं, सर्वाइवल. फाइनली जब सब चीज़ें हाथ से निकल जाती है, he realizes that being a human, taking a chance of his life, he has committed a blunder, but he now wants to go ahead and accept his death, face his death with dignity. He sits under a pine tree there and remembers कि उसे old man
वो वाइज गाय ने क्या बोला था, जो कि उसको मिला था सल्फर क्रीक पे। उसने मना करा था दैट डोंट बी ट्रैवलिंग ड्यूरिंग दीज टाइम्स ऑफ ईयर्स, स्पेशली एट दिस ट्रैक। What happens is he is now waiting for his inevitable end, probably being frozen to death. But वो ओल्ड मैन की एक थ्योरी प्रूव कर रहा था कि हाँ, ह्यूमंस कितने भी एडवांस कर ले, नेचर की फ्यूरी के अगेंस्ट खड़े नहीं हो सकते हैं। Not everything goes according to humans. यहां डॉग को भी बताया गया है इस पूरी स्टोरी में कि डॉग भी एक्चुअली नेचर का ही एक पार्ट है दोस्तों। नेचर के फ्यूरी को, नेचर के इमोशनलेस होने को इस तरीके से दिखाया गया कि वो डॉग काफी देर से वेट कर रहा था। वो काफी देर से वेट कर रहा था कि वो मैन उठे, उसके साथ रहे, उसे फूड दे, फायर जलाए, उसे वार्मथ मिलेगी। लेकिन जब डॉग ने भी रियलाइज करा कि नाउ इट्स टू लेट फॉर द मैन टू गेट अप, प्रोबेबली ही हैज लॉस्ट हिज लाइफ, वो वापस उस सिविलाइजेशन की तरफ भागता है जहां उसे फूड और फायर मिल सकेगी। दिस शोज द लैक ऑफ इमोशन इन द रेलम्स ऑफ नेचर, क्योंकि डॉग भी नेचर का ही एक पार्ट है दोस्तों। और वहां पे बताया गया था कि डॉग ने फाइनली कहीं ना कहीं अपने इंस्टिंक्ट्स नेचर के इंस्टिंक्ट्स के साथ मैच करके बताए। He doesn't realize that there's an emotional contact between the man and the dog. In the same way, between a man and the nature, वो emotional contact नहीं है। If you fight against it, it will pay you back. And when it pays back, it hits you very badly. एक desperation दिखाया गया है इस स्टोरी में दोस्तों, ह्यूमन एस्पिरेशंस की। किस तरीके से वो डेस्परेट रहता है, एक बार दो बार गिर के वो जाना चाहता है उस जगह पे। ह्यूमंस, एक ह्यूमन नेचर जो होता है ना दोस्तों, दैट इज थ्राइविंग। दे लाइक टू गो अहेड एंड थ्राइव, बट स्टिल they are overcome by certain powers. The story clearly shows us the fury of nature versus man. It shows us aspirations versus real situations. हम जो सोचते हैं उसके हिसाब से जो real situations होती है, हम चाहते हैं ऐसा हो जाए, नहीं, जो real situations होती है उससे हम मुंह मोड़ते रहते हैं। That is what this man was doing. He was not accepting the reality of the situation at that very moment. He was trying to turn away, he was trying to face the other side, but that was totally wrong. Again, यहाँ instincts बताए हैं कि इंसान अपने इंस्टिंक्ट से काम करता है, वो हैवक की सिचुएशन को समझता नहीं है। वो डॉग वहीं पे उस सिचुएशन को समझ रहा था। He was saving his energy, he was saving his resources. यहाँ पे डेस्परेशन इसलिए भी दिखाया जाता है, वो आदमी एक के बाद एक 70 मैच स्टिक्स इकट्ठे जला के क्या प्रूव करना चाहता है? That he'll try to have some big fire? He is not controlling his resources. He's just finishing them off. Whereas the dog and the nature एक एक करके अपने resources निकाल रहे हैं। नेचर ने एक एक करके पूरी शिद्दत के साथ इस आदमी की जान निकाली थी दोस्तों। It never went ahead and kept all the things all together upon the man. It gave him death in pieces. So, जैक लंडन यहाँ पे बता रहे हैं comparative analysis between human aspirations that lack sensibility and the nature's fury that contain full effectivity. Still, अगर कोई doubts है तो नीचे comment box में comment ज़रूर करना दोस्तों. We'll have a good discussion because these are certain good chapters. Now we'll be going ahead and having a look at the next chapter as well. So please stay tuned. And फिर भी कोई doubts है तो comment करिएगा. Take care. Bye bye.